एज आई सेड कि हम कुछ इंटरेस्टिंग सा जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैंने ये टॉपिक कल भी स्टार्ट किया था। कल की अगर आप लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग दिखाई हो तो उसमें मैं आपको ये बिल्कुल जहाँ एंड हुई होगी रिकॉर्डिंग यही टॉपिक समझा रही थी। तो वो बीच में मीटिंग एंड हो गई थी। उसमें था कि आयोनिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं। आज मैं आपको पूरी एक जर्नल केमिकल इक्वेशन लिखकर बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस तो है आपने अब सीख लिया, लिखनी कैसे है केमिकल इक्वेशन उसकी कुछ टेक्निक्स बताने लगी हूँ। ठीक है, अब टेक्निक्स को समझने के लिए आपने ये समझना है कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, कौन सा कंपाउंड कार्बोनेट है, कौन मेटल है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस रिएक्शन से। सिंपलेस्ट वन we discussed about this in a titration. So how to write a chemical equation for acid base reaction? For example, acid is HCl and base is Na2O. If this one is an acid and this one is a base, sodium oxide is a base and HCl, hydrochloric acid, is an acid, what will be the product? As we know, when acid and base react, what is the product, Ayan? When acid and base react together, what is the product? Abir, what is the product if acid and base react? What are the products basically? There will be two products. So Abir, what are the products of acid-base reaction? Aman? मिस ये कंपाउंड क्या बनेगा? जी, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? These are reactants, so products क्या बनेंगे जी? मिस NaCl plus H2O. H2O. Salt plus water. Okay, Yes. then acid and base react, salt and water form. So here which one is a salt and which one is a water? NaCl is the salt and NaCl is a salt and H2O is a water. So if in exam there is a reaction between any nature of acid and base, quickly make salt and water. How to make a salt and water? In acid, this one is a positive species and chloride is a negative species. In this base, sodium, as we know, it's a metal, always contain positive charge, and oxide always contain, oxygen always contain negative. So, two negative. So, this 2 is shifted here to make it a neutral compound. Clear? If there are two Na plus, they will combine with one oxygen which having two negative ion, which means oxygen having two electrons to share with this, to donate with this. Clear? It's clear? To make a bond with this sodium, two sodium positive ions. Okay, in this way Na2O will form. So this species is a positive species and this species is a negative species. So this positive species make a bond with this negative species and this positive species make bond with this negative species. So NaCl is formed. Salt, sodium chloride is formed. H and O, water will form. So H2O will form. Now you have to balance this equation. How we can balance this equation? Here you can see there are two sodium and in a product there is just one sodium. So add 2 as a mole coefficient. साइड पर आपने 2 लिखना है. This is mole coefficient. ठीक है, यहाँ 2 atoms हैं, so आपने यहाँ 2 लिखना है. Now Cl is also 2. Here you can see there is just one atom for Cl, so you have to write 2 here also. So 2H positive, here 2H, here 2Na, here 2Na in a product.
2Cl in product and 2Cl in reactant. Now the equation is balanced. Yes. Okay, next is the reaction between HCl, hydrochloric acid, and sodium hydroxide. This one is a acid and this one is a base. What will be the product? NaCl NaCl plus H2. It's very easy. एक कंपाउंड में एक स्पीशी पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव, हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज. दिस हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. So this positive species make a bond with this negative species and this positive species make a bond with this negative species, negative ion basically. So positive ion with the negative ion and negative ion with the positive ion will make salt and water. So always remember when acid and base react, salt and water will form. किसी भी नेचर के कंपाउंड्स हैं, HCl है, acid H2SO4 है, HNO3 है, these all are acids. H3PO4 phosphoric acid. So किसी भी नेचर का एसिड हो, किसी भी नेचर का बेस हो, NaOH हो, KOH हो, so कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, you have to make always salt and water. तो आपने देखना है कौन सी स्पीशी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है. अब दिस इज अ रेडिकल, तो ये पूरी एज अ नेगेटिव आयन बिहेव करेगा. NO3 इज अ रेडिकल, ये पूरा एक आयन बिहेव करेगा. PO4 इज अ रेडिकल, नेगेटिव चार्ज होता है, -3, इसके ऊपर होता है 1, इस पर होता है 2-. सो आपने ये सारी बातें याद रखनी है, वैलेंसेस को रिवाइज करना है. नेक्स्ट आते हैं, इफ देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं. जो मैं रिएक्शंस लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, ये आपकी कॉपी पे आज के टॉपिक में होंगे, दैट केमिकल इक्वेशंस की टॉपिक, और उसमें फिर आपने ये सब लिखना है. नेक्स्ट इज एसिड एंड कार्बोनेट, रिएक्शन बिटवीन एसिड and carbonate. What will be the product if there is a reaction between acid and carbonate? The product will be always salt plus water plus carbon dioxide. हमेशा जब भी एसिड और कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होगी. एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये आपकी हेडिंग्स होंगी और फिर आपने इक्वेशन की एग्जाम्पल देनी है. HCl एसिड ले लेते हैं, कार्बोनेट हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एंड दिस वन इज कार्बोनेट, दिस हैविंग 2- एंड दिस हैविंग +1+ वैलेंसी. सो इसकी वैलेंसी इसके नीचे शिफ्ट होगी, तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. दिस वैलेंसी शिफ्ट अंडर द सोडियम, सो वी हैव टू राइट हियर 2, तो Na2CO3. क्लियर. नेक्स्ट आइए, एज आई सेड कि सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बोनेट का CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है. अब एक ऑक्सीजन है यहाँ पर जो कि वाटर में ऐड हो जाएगी, तो दिस वन H एंड दिस वन ऑक्सीजन विल मेक वाटर, तो ये वाटर बना लेंगे. बाकी आपके पास क्या स्पीशीज बची, आपके पास Cl बचा और Na बचा. दिस विल मेक द सॉल्ट. असद समझ आ रहा है बेटे? आ रहा है सबको समझ? यस मिस. ओके, सो सॉल्ट बन, जब भी एसिड और कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड. सो कार्बोनेट में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, किसी भी नेचर का कार्बोनेट हो सकता है. कोई भी कार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अब एसिड भी चेंज हो सकते हैं, H2SO4 हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 हो सकता है नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है. जब भी एसिड कार्बोनेट के किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, आपका माइंड में फौरन क्लिक करना चाहिए दैट यू हैव टू मेक सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. याद रहेगा ये सब सबको? यस मिस. आपने कॉपी में ये एक इक्वेशन लिखनी है और आपने इसके साथ एक एक इक्वेशन जो मैं मेंशन कर रही हूँ उसके अलावा
एक एक इक्वेशन आपने खुद से बनानी है या इंटरनेट से सर्च कीजिए, आपने लिखनी है। इट्स क्लियर? हर एक रिएक्शन जो मैं इक्वेशंस लिख रही हूँ उसके अलावा एक इक्वेशन आपका होमवर्क है कि वो आपने खुद से लिखनी है। नेक्स्ट क्लास ओके मिस। आपका इस पूरे चैप्टर का टेस्ट है, चैप्टर नंबर 7 जो आपका केमिकल फॉर्मूले वाला चैप्टर है, आपका इस पूरे चैप्टर का नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट क्लास हमारी वेडनेसडे को है। सो उस नेक्स्ट क्लास के बीच में आपके पास 5 डेज हैं। इन 5 डेज में इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें और आप लोगों की जो वर्कशीट है वो आज ही गूगल पे सब शेयर कर दें जिनकी रह गई है, अपना प्रीवियस सारा होमवर्क कंप्लीट कर लें और प्रेजेंटेशन जिन्होंने नहीं बनाई वो मुझे शेयर कर दें। नेक्स्ट मिस जी बेटे। मिस वो जो आपने होमवर्क दिया हुआ था वर्कशीट का, वो प्रिंट करवाना जरूरी है? जी और फिर बेटा, कॉपी में print? जी वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने वो आपको अब सॉल्व करवाना है। आप सबका टेस्ट आ जाए मेरे पास, उसको मैं आपको मार्किंग कर दूं, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। जब तक मुझे सब सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट नहीं आएगा मैं तब तक सॉल्व नहीं करवाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज बिटवीन एसिड और मेटल। अगर एसिड और किसी भी मेटल के बीच में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और साथ में प्रिपेयर होती है हाइड्रोजन गैस, साथ में प्रिपेयर होती है हाइड्रोजन गैस बेसिकली। सो लेट्स सी इफ द, ये आपकी हेडिंग होगी, सारी चीजें याद रखनी, फिर आपने एग्जांपल में इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन HCl प्लस Mg इज अ मेटल, यू नो दिस इज अ मेटल। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं, तो कोई भी मेटल हो, लिथियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, आपके पास सोडियम हो, these all are, अगर आप periodic table अपना खोल के देखें, these all are metals। so आपके कोई भी मेटल हो, HCl कोई भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, H3PO4 भी हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है। प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। सो लेट्स सी क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है। ओके, let's do it. Gee, which one will be the salt? What do you think? MgCl. MgCl. Okay. And Plus H2. plus H2. Okay. Mostly near to the product. MgCl2 will be the salt. बेटा आप लोगों को बताया है जो भी वैलेंसी होती है दैट इज शिफ्टेड। मैग्नीशियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स अ मेटल, ग्रुप 2 का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इसकी वैलेंसी होती है 2+। सो इसकी 2+ वैलेंसी है, क्लोरीन की होती है 1-, वी नो दिस। तो 1- तो शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन ये 2+ तो शिफ्ट होगा ना इसे बैलेंस करने के लिए। इट मींस कि Mg का एक एटम के लिए Mg2+ है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली डोनेट किए होते हैं। दिस वन इज माइनस, तो इन दोनों माइनस को बैलेंस करने के लिए, इस 2+ को बैलेंस करने के लिए 2 माइनस आइंस चाहिए। सो दैट्स व्हाई MgCl2, तभी तो 2- होगा, तभी तो 2+ और 2- कैंसिल आउट होके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएंगे, न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। सो MgCl2 विल फॉर्म प्लस H2। ठीक है, तो अपने इक्वेशन इस तरह प्रॉपर लिखनी है, मिस्टेक नहीं करनी है इन एटम्स की। नेक्स्ट, एक एक एग्जांपल अब सबकी सारे रिएक्शंस की आपने देनी है। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं सॉलिड फॉर्म में, आपका जो है वो, आपका जो सोल्यूशन है वो सस्पेंशन जैसा हो जाता है, प्रेसिपिटेट्स आपको उसमें नजर आना शुरू हो जाते हैं, सस्पेंशन सी लगती है आपको, उसमें लगता है कि सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, अब कोई भी आपका कंपाउंड है, कोई भी सॉल्ट है, वो रिएक्ट कर रहा है अगर HCl से, ठीक है, एसिड से, एसिड इज रिएक्टिंग with AgNO3 for example, making, what do you think, what will be the product?
What will be the product? What do you think? Miss AgCl. AgCl, very good. AgCl. Why AgCl? Because Ag is positive species and NO3 is negative. This is positive, this is negative. Ag positive 1 है, NO3 minus 1 है, H plus 1 है, Cl minus 1 है. ठीक है, that's why इनकी वैलेंसी शिफ्ट नहीं हुई. This is a complete radical. इस पूरे रेडिकल पर 1 माइनस वैलेंसी होती है. ठीक है, सो AgCl दिस विल बी इन अ सॉलिड स्टेट. ये प्रेसिपिटेट्स बनाता है, सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है. तो हमेशा आपका सॉलिड कंपाउंड बनेगा जब भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा. आपका क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, इस नेचर के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में फॉर्म होंगे और साथ में बनेगा एसिड. HNO3 मिलकर बना लेंगे नाइट्रिक एसिड. This H will combine with the anion, the negative species जो कि आपके प्रोडक्ट की थी, और बना लेंगे HNO3. मोस्टली जब भी आपके जो मेटल्स हैं, मेटल्स जब भी क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं या हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉलिड प्रोडक्ट्स बनाते हैं. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन इज बिटवीन अमोनिया एंड एसिड. अगर अमोनिया और एसिड में रिएक्शन हो रहा है, इफ देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड एसिड, तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? अमोनिया का फॉर्मूला यू नो दिस, NH3, और एसिड हैविंग अ फॉर्मूला HCl. जब भी अमोनिया एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, अमोनिया कंटेनिंग कंपाउंड बेसिकली हम बात करते हैं. अमोनिया कंटेनिंग कंपाउंड, अमोनिया, दिस इज अमोनिया, this is acid. When they react, which salt will be formed? What do you think? कौन सा salt बनेगा? Miss NHCl. NH4Cl. NH स्पीशी नहीं होती रेडिकल की नेगेटिव या पॉजिटिव. NH4 पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव. सो ये अमोनिया एक लोन पेयर कंटेन करता है. दिस लोन पेयर इज डोनेटेड टू दिस H पॉजिटिव. इसको दे देगा तो इसके साथ NH4 स्पीशी बना लेगा. और क्लोराइड नेगेटिव वो आपके मीडियम में होगा, वो इसके साथ एज अ नेगेटिव स्पीशी अटैच हो जाएगा. सो दिस विल बी NH4Cl. अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं वाटर नहीं बन सकता. मिस क्यों नहीं बन सकता वाटर? बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन. इन दोनों कंपाउंड्स में ऑक्सीजन नहीं है. सो जब यहाँ इनमें ऑक्सीजन नहीं है, ना ही एसिड में ऑक्सीजन है, ना ही इस अमोनिया में ऑक्सीजन है, तो वाटर नहीं बन सकता. अगर आपके एसिड में भी ऑक्सीजन होती तो मे बी तब वाटर बन जाता, लेकिन इस कंडीशन में वाटर नहीं बनेगा. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मिस अमोनिया तो गैस है और लैब में हम गैस तो यूज नहीं करते, हम तो लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, और व्हेन अमोनिया इज इन अ लिक्विड फॉर्म तो इसमें तो वाटर भी होता है. यस, जब अमोनिया हम लैब में यूज करते हैं तो इसके साथ वाटर में मिक्स्ड होती है. अमोनिया गैस वाटर में डिसॉल्व की होती है. सो जब वाटर रिएक्टेंट में भी है और वाटर अगर मैं प्रोडक्ट में भी लिख दूं तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, कोई इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया. तो बेसिक रिएक्शन इज अमोनिया एंड HCl दैट इज मेकिंग NH4Cl. क्योंकि ये वाटर कोई रिएक्शन से नहीं बना, ये जो आपके रिएक्टेंट में वाटर था अमोनिया का वही प्रोडक्ट में शोर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे.